Hello everyone, this is our lecture 8 on distributed operating system. In previous lecture we covered communication, IPC, RPC, RMI, everything about communication we have already covered in previous videos. So you can check out that videos. In today's lecture we are going to cover synchronization and need of synchronization. After then what is clock synchronization, issues in clock synchronization, reasons for delay in synchronizations. Okay, so we'll see one by one. Okay, so first one is synchronization and need of synchronization. Okay, so what is the meaning of synchronization in normal term? In general meaning of synchronization is the operation or activity of two or more things at the same time or rate. In here it means coordination of action between the processes. So general meaning of the synchronization means when two activities work together as a same time or as a same rate, it is called a synchronization. And in distributed system, we are going to learn in distributed system, right? So in distributed system it means coordination of actions between processes. So अगर मैं आपको नॉर्मल टर्म है सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बताऊं तो सिंक्रोनाइजेशन क्या हुआ, जब दो एक्टिविटी सेम टाइम पे काम कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेम टाइम पे सेम ऑपरेशन पे काम कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइजेशन. ओके, सो जनरल मीनिंग में अगर हम लोग आपको मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल अगर दूं, दैट वी ऑल यूज मोबाइल फोन, राइट. अगर बाई चांस हमारा मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है या नेटवर्क के बाहर चला जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो हमारा जब भी व्हेन वी रीस्टार्ट द फोन वो टाइम मांगता है, राइट. और उस टाइम पे भी अगर आप टाइम सेट नहीं करते हैं, व्हेन योर फोन इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, ही कम्स अंडर अ नेटवर्क, तब वो फ़ोन जो है वो नेटवर्क में टाइम के लिए रिक्वेस्ट डालता है ताकि हमारा जो टाइम जो नेटवर्क में टाइम है वो सेट हो सके, राइट. सो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन हुआ क्या, हाउ द प्रोसेसेस आर सिंक विद ईच अदर, ये क्वेश्चन माइंड में आएगा, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, if you use these websites such as facebook.com, google.com, so these questions surely wonder you how this website can handle millions of requests per second, right. so like हम लोग facebook यूज़ करते हैं, google.com यूज़ करते हैं, तो एक टाइम पे आप ही उसको यूज़ नहीं कर रहे होते, millions of people are using at that time, right. so have you wondered that how this website can handle these requests? Is there any single commercial server that can handle this huge amount of requests? In that manner, every request can respond time for end users. ऐसा कोई एक कमर्शियल सर्वर है जो इतना लार्ज नंबर ऑफ मिलियन नंबर ऑफ जो रिक्वेस्टेज आ रही हैं उनको वो हैंडल कर पा रहा है ताकि ऑन द स्पॉट लाइक एकदम से सबको रिस्पॉन्स मिल रहा है. आप खुद सोचिए, फेसबुक पे मिलियंस ऑफ यूज़र हैं, जब आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर यूजिंग द फेसबुक, बट एट द सेम टाइम मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग द फेसबुक, राइट. सो ऐसा कोई सेंट्रलाइज सर्वर है जो हर एक यूज़र को ऑन द स्पॉट वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट. सो फॉर दिस द कंसेप्ट और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इज यूज. ओके, सो इस कंसेप्ट के लिए क्या यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर दैट अपीयर टू इट यूजर एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम. ओके, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम? डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स और nodes that appear to its user as a single coherent system. You are assuming that you are using a single system, but actually it has a number of independent computers. Okay, so user believe that they are dealing with a single homogeneous machine that execute multiple processes parallel to handle batches of requests at once. Okay, however, for people who understand system infrastructure, they do not believe easily on this process. जो एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आता है, जो नॉर्मल लोग हैं उनको ऐसा ही लगता है कि होमोजेनियस मशीन्स हैं और वो पैरेलली काम कर रही हैं, राइट. बट जो लोग इस फील्ड के हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं, दे डू नॉट बिलीव ईजली ऑन दिस प्रोसेस, राइट. सो फॉर थाउजेंड ऑफ इंडिपेंडेंट मशीन रनिंग कंकरेंटली दैट मे स्पैन मल्टीपल टाइम जोन्स एंड कंटेनमेंट, राइट. अब इंडिया में ही टाइम हम लोग फेसबुक यूज़ नहीं करते हैं, मिलियंस ऑफ यूज़र आर यूजिंग फेसबुक इन वर्ल्ड वाइड, राइट. तो हर एक जगह की टाइमिंग्स भी अलग अलग होती हैं, राइट. सो some time of synchronization must be given to these machines to collaborate efficiently with
ईच अदर, राइट। सो कुछ टाइप की सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन तो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा ना दीज मशीन को, ताकि वो एफिशिएंटली एक दूसरे के साथ काम कर सकें, राइट। सो विल डिस्कस दिस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टाइम. So we'll discuss the synchronization of time and how it achieve consistency among machine on ordering and causality of the events. ठीक है। सो एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक हम लोग अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स रखते हैं, राइट। जब हम अपना फ़ोन चेंज करते हैं तो आप अपना हर एक कॉन्टैक्ट जो है वो लिख के नहीं रखते, यू जस्ट सिंक योर कॉन्टैक्ट्स ऑन योर जीमेल अकाउंट, राइट। जब भी आप दोबारा अपना जीमेल अकाउंट किसी दूसरे फ़ोन में ऑन करते हो तो जो सिंक हुआ होता है वो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपके नेक्स्ट फ़ोन में आ जाते हैं, राइट। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ओके। Distributed is a collection of computers connected via high speed communication network. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, जो कंप्यूटर्स होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय द हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ओके। इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर components communicate and coordinate their action by message passing. How they component communicate in distributed systems? Like by message passing, okay. So each node in the distributed system can share their resources with other nodes, okay. So there is a need of proper allocation of resources to preserve the state of resources and help coordination between the several processes. Like एक proper coordination करना पड़ेगा जब भी कोई दो processes जो हैं वो resources को यूज कर रही हैं या उनको जो रिसोर्स हैं वो एलोकेट हो रहे हैं, राइट। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोसेसेस, ओके। तो सो अब क्या है, सोचिए फॉर एग्जाम्पल जो एक प्रोसेस है उसको भी प्रिंटर को एक्सेस करना है, दूसरे प्रोसेस को भी प्रिंटर को एक्सेस करना है। आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, ओके। सो दोनों एक टाइम पे तो उसको यूज़ नहीं कर सकती, राइट। तो इस टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए वी यूज़ सिंक्रोनाइजेशन, ओके। सो सिंक्रोनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कैसे आएगा, बाया क्लॉक्स, ओके। So the physical clocks are used to adjust the time of the nodes. So क्या use करेंगे हम लोग, we are using physical clocks to adjust the time of the node, okay. So each node in the system can share its local time with other node in the system, okay. पहले मैं आपको बता दूं clocks में क्या होता है। clocks में जो मेन चीज़ होती है, हर एक नेटवर्क में जो मेन चीज़ होती है that is time, okay. So time क्या होता है, किसी भी सिस्टम में एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द टाइम, राइट। अगर उसको कम्युनिकेशन करना है और इफ दे वांट टू एक्सचेंज द मैसेजेस और दे वांट टू शेयर द मैसेजेस, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द टाइम, राइट। इफ दे वांट टू रिक्वेस्ट द पैकेट और दे वांट टू सेंड एनी मैसेज, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द टाइम, राइट। सो बेसिकली क्लॉक में क्या होता है, क्लॉक में होता है ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस होती हैं, राइट। ऑक्सीलेशन क्या होती है, लाइक जैसे टाइम जाता है वैसे ही ऑक्सीलेशन काउंट होती जाती है। लाइक जैसे मान लो हम लोगों को एक दिन में 100 ऑक्सीलेशंस 1000 ऑक्सीलेशंस हो रही हैं, जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग जो होती हैं वो ऑक्सीलेशंस जाती हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन या किसी भी सिस्टम में क्या होता है, एक टाइम के बाद आके वो ऑक्सीलेशन जो होती है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग घर पे नॉर्मल क्लॉक लेके आते हैं, राइट। सो क्लॉक में भी जब हमारा सेल जो है वो डेड होने वाला होता है उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, राइट। थोड़ा सा माइनर से ऑक्सीलेशंस में प्रॉब्लम आने लगती हैं, ठीक है। तो उन ऑक्सीलेशन को जो उन ऑक्सीलेशन के टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन, ओके। सो जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको टाइम में एडजस्ट करने के लिए क्या यूज होगा, वी यूज फिजिकल क्लॉक्स, ठीक है। सो फिजिकल क्लॉक में क्या होता है, फिजिकल क्लॉक जो होता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। सो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक रेफरेंस टाइम होता है क्लॉक का जो नोड्स को दिया जाता है कि आप इस यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग सेट हो जाइए। फॉर एग्जाम्पल एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हैं तो वो सर्वर से पूछेंगी कि यूनिवर्सल टाइम क्या है, ठीक है। तो जो सर्वर है he will respond back कि this is the universal time right now, you can adjust this time according to UTC, okay. So what is clock synchronization? Clock synchronization is a mechanism to synchronize the time of all the system connected in distributed system. Why we use clock synchronization?
to synchronize the time of all the system, all the nodes connected in distributed environment. Okay, so each node in the distributed system can share their resources. ठीक है, सो इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं so they can share their resources. For example, the producer consumer process and the client server process. Okay, sharing of printer or scanner, but the resources can be limited. They can be shared in either cooperative or competitive modes. तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, जब दो नोड्स हैं, दे वांट टू एक्सेस द प्रिंटर एट सेम टाइम, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ओके, सो उससे क्या होगा, सब कॉन्फ्लिक्ट्स आर जनरेटेड. ओके, सो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, या तो उनको उसको शेयर करना पड़ेगा, या तो कॉर्पोरेटिव मैनर में उनको यूज करना पड़ेगा, या कॉम्पिटेटिव मोड्स में उनको यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सो रिसोर्सेज लाइक अ प्रिंटर एंड स्कैनर कैन नॉट बी यूज बाय मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली. ओके, सो इट मस्ट वेट फॉर वन प्रोसेस टू कंप्लीट एंड देन गिव चांस टू द नेक्स्ट प्रोसेस. इसमें क्या होगा, सो वन प्रोसेस हैज टू वेट, so the second one can complete his task and then give chance to the next process. Okay, so another example is like producer consumer and client server process which work in cooperative mode. Producer consumer में भी क्या होता है, जब producer is producing something, consumer wait for that. why he wait, जब तक प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा, राइट. सो वो जो जब तक प्रोड्यूसर आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, एट दैट टाइम कंज्यूमर इज इन वेट स्टेट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट सर्वर प्रोसेसेस, व्हेन क्लाइंट रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम सर्वर, राइट, देन सर्वर इज प्रोसेसिंग ऑन दैट मैसेज और पैकेट. एट दैट टाइम क्लाइंट इज इन वेटिंग स्टेट. ओके, सो ये कौन सा मोड बनता है, दिस इज कॉर्पोरेटिव मोड. ओके, सो देर इज अ नीड ऑफ प्रॉपर एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रिजर्व द स्टेट ऑफ रिसोर्स एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोसेसेस. सो इन जैसे वेट करना पड़ रहा है, जो रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ रहा है, ये एक टाइप के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं. सो clock synchronization is very important. Clock synchronization can be implemented by using the physical local clock of each node. Okay, the clock synchronization can be achieved in two ways, external and internal clock synchronization. Okay, so first one is external clock synchronization and second one is internal clock synchronization, right. So external clock synchronization is the one in which an external reference clock is present. It is used as a reference and the node in the system can set and adjust their time accordingly. एक्सटर्नल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल रेफरेंस क्लॉक यूज होती है जिसके थ्रू जो नोड्स हैं अपना टाइम जो है वो एडजस्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू external node, external reference clock, the nodes will set their time, right. After that, second point is internal clock synchronization. Internal clock synchronization is the one in which each node share its time with other nodes and all nodes set in the adjust their time accordingly. Like for example, the clients are asked server to what is the time in that server, right. So server will respond back and set them to set their time accordingly. Like सर्वर से जो सर्वर के उस टाइम पे एट द स्पॉट जो टाइम होगा उसका, वो टाइम उनको जो सर्वर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको भेजेगा कि दिस इज द टाइम एंड यू सेट योर टाइम अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो देर आर टू टाइप ऑफ क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. सो सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे. तो सेंट्रलाइज में क्या होता है, एक सिंगल टाइम सर्वर यूज होता है जिसके अकॉर्डिंग जो अपना टाइम प्रोपोगेट करता है नोड्स, और नोड जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम जो है वो एडजस्ट करती हैं. ठीक है. सो सेंट्रलाइज वन विच अ टाइम सर्वर इज यूज एज अ रेफरेंस. ओके, एक इंटरनल टाइम सर्वर यूज होगा, एक सिंगल टाइम सर्वर यूज होगा, and that single time server propagate its time to the nodes and all the nodes adjust the time accordingly. ठीक है. So basically centralized में क्या होता है, it's a dependent, right. Nodes, all the nodes are dependent on each other, right. So it's a dependent on single time server. So if that a node fails, the whole system will lose synchronization. अगर एक ही सिस्टम पे हम लोग डिपेंड करते हैं और वो सिस्टम जो है हमारा फेल हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिलेगा. ओके. सो इसके एग्जांपल्स हैं, इसके एल्गोरिदम्स हम आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं. बार्कले एल्गोरिदम, पैसिव टाइम सर्वर, एक्टिव टाइम सर्वर, दिस ऑल आर कवर्ड इन अपकमिंग लेक्चर्स. ओके. आफ्टर दैट
Second one is distributed. So distributed is one in which there is no centralized time server present. Instead, the nodes adjust their time by using their local time and then taking the average of difference of the time with other nodes. इसमें क्या होगा, जो नोड्स हैं वो अपना लोकल टाइम लेंगी, राइट. उसके बाद क्या करेंगी, सबका जो एवरेज होगा, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, जितने नंबर ऑफ नोड्स नेटवर्क में होंगी, सबका टाइम लेके दे विल टेकिंग द एवरेज or the different they will taking the average of the differences of the time and adjust accordingly. Okay, so distributed इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स का अलग अलग टाइम, जो अलग अलग हो सकता है, एक नोड का टाइम अलग आ रहा है, दूसरे का अलग टाइम आ रहा है, तो जितने भी नंबर ऑफ नोड्स उस नेटवर्क में कनेक्ट होंगे उनका एक एवरेज टाइम लेके वो लोग अपना टाइम सेट कर लेंगे. ओके, so distributed algorithm overcome the issue of centralized algorithm like the scalability and single point failure. Example कौन से हो गए, global averaging algorithm, localized algorithm, NTP algorithm. ये सारे जो हैं वो हम लोग कवर करने ही वाले हैं. ओके, सो आफ्टर दैट ये हो गया क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन. क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है. हो सकता है कि यहाँ पे ये एक पीसी अपना यूएस में है, दिस इज इन जर्मनी एंड दिस इज इन इंडिया. ओके, सो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या होगा, एक एवरेज टाइम वो लोग सेट कर लेंगे. ठीक है, अगर यूएस का टाइम अलग है, जर्मनी का टाइम अलग है एंड इंडिया का टाइम जो है वो अलग है, तो ये लोग क्या करेंगे, इन तीनों टाइम का एक एवरेज टाइम निकाल के अकॉर्डिंग टू दैट टाइम दे विल सेट दैट टाइम. ओके, सो तीनों का एवरेज निकाल के जो भी टाइम आएगा वो तीनों जो है वो अकॉर्डिंगली उस टाइम के अपने पीसी को और अपने नोड को सेट कर लेंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. सो जो हमने पढ़ा, सेंट्रलाइज में क्या होता है, सेंट्रलाइज में एक सिंगल टाइम सर्वर होता है. जो भी नोड्स होती हैं दे सेट देयर टाइम अकॉर्डिंग टू दैट सिंगल टाइम सर्वर, राइट. बट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दे टेक द एवरेज ऑफ डिफरेंसेस ऑफ द टाइम. लाइक इफ यूएस में डिफरेंट टाइम है, जर्मनी में डिफरेंट टाइम है एंड इन इंडिया इट्स इन डिफरेंट टाइम, तो दे विल टेक द एवरेज. ओके, वो क्या करेंगे, तीनों का जो डिफरेंस का एवरेज आएगा वो जो है यूएस वाला भी वही टाइम सेट कर लेगा, जर्मनी वाला भी वो टाइम सेट करेगा एंड इंडिया भी वही टाइम सेट करेगा. ओके ओके, सम ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल शोज द प्रॉब्लम विद असिंक्रोनाइज्ड क्लॉक. ठीक है, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड बैंकिंग सिस्टम इफ द टाइमिंग एंड द ऑर्डरिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर नॉट ट्रैक्ड इट मे रेज इनकंसिस्टेंट स्टेट इन द सिस्टम, राइट. अगर बैंकिंग, ये जो बैंकिंग होती है ये बहुत ही क्रूशियल बोल सकते हैं आप, एक टाइप के सिस्टम होते हैं. अगर इसमें टाइमिंग और ऑर्डरिंग जो होगी यूज़ नहीं होगी, अगर फाइनेंशियल में आपको पता ही है, अगर 1 पैसा सिंगल 1 पॉइंट का भी अगर डिफरेंस आता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो ट्रांजेक्शन है उसमें बहुत बड़े इश्यूज आ सकते हैं. तो इससे क्या होगा, सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे भी सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरत होती है. ठीक है. Second one is a distributed online reservation system in which the last available seat may get booked from multiple nodes if their local clock are not synchronized. ठीक है, कि अगर हमारी जो हमें पता है कि ये टाइम पे जो है वो सीट रिजर्वेशन होने वाला है, राइट. बट अगर जो हमारे फोन्स हैं या हमारी जो नोड्स हैं उनके टाइम सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो जो लास्ट नंबर की सीट होगी वो मल्टीपल लोग जो है वो बुक कर सकते हैं. उससे भी क्या आएगा, इनकंसिस्टेंसी आएगी, राइट. सो देयर इज अ नीड to transmit a message from one node to another node at time. This will become difficult if the sender and receiver clocks are not synchronized with each other. अगर सेंडर और रिसीवर की जो क्लॉक्स हैं वो भी सिंक्रोनाइज नहीं है तो उनको भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ से सेंडर ने मैसेज सेंड किया बट रिसीवर को पता नहीं कब मिल रहा है, कब उसका रिसीवर का उसको एक्नॉलेजमेंट आएगा, तो वो भी एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में ही मैसेज आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, सो synchronization in distributed system can be achieved by using physical clocks. Okay, for synchronization purpose each node in the system need to share their local clock time with the another node in the system. Okay, so clock synchronization performed based on physical clock of the कंप्यूटर. क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी, जो अपने कंप्यूटर की फिजिकल क्लॉक होती है उसके बेस पे होगी. ओके, द फिजिकल क्लॉक आर यूज टू एडजस्ट द टाइम ऑफ नोड. ईच नोड इन द सिस्टम कैन शेयर इट लोकल टाइम विद द अदर नोड ऑफ द सिस्टम
एंड द टाइम इज सेट बेस्ड ऑन यूटीसी। फिजिकल जो क्लॉक्स होती है उसमें क्या यूज होगा, मेन यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन। यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन क्या है, एक रेफरेंस टाइम, रेफरेंस क्लॉक जो दी गई है और जितने नंबर ऑफ नोड जो सिस्टम में होती हैं वो यूटीसी यूज करके अपना टाइम जो है वो एडजस्ट कर लेती हैं, उसको एज अ रेफरेंस वो उठाती हैं, ठीक है। Then computer clock construction and mechanism. Each computer consists of quad crystal that oscillate. ये जो oscillate का एग्जाम्पल है मैंने आपको पहले भी दिया है, राइट। सो ईच कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ क्वाड क्रिस्टल दैट ऑक्सीलेट एट द प्रेडिक्टेबल फ्रीक्वेंसी व्हेन स्क्वीज। There is a computer register which keep tracks of oscillation and decrement of 1 by every oscillation. Okay, वहाँ पे एक कंप्यूटर रखा होता है जो ट्रैक करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस हो रही हैं, कितनी कम होती जा रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया, ऑक्सीलेशन एक टाइम के बाद में उनमें थोड़ा सा डिफरेंट आने लग जाता है जिसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। उसको लाइक जब भी थोड़ा सा भी डिफरेंस आया, छोटू सा भी डिफरेंस आया, यू कैन से इफ 1 मिली सेकेंड का भी डिफरेंस आया तो उसको हम ड्रिफ्ट बोलेंगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी। सो व्हेन it reaches to zero and interrupt is generated and counter is reloaded from holding register. The value of holding register is decided based on the frequency of oscillation and the number of interrupt can be controlled. Okay, so क्या होगा, जो हमारा oscillation अगर कम हो गया तो उसको हम फिर से reload कर देंगे। Okay, so the holding register value chosen to be 60 clock ticks per second. तो क्या सेट हो जाएगा, नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग देखते हैं तो 60 सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में, राइट। तो इसमें फिर से क्या होगा, 60 सेकेंड जो होंगे वो सेट कर देंगे, ठीक है। सो देयर मे बी डिफरेंसेस इन क्रिस्टल ऑक्सीलेशन लीड्स टू क्लॉक रनिंग एट डिफरेंट रेट विच नोन एज क्लॉक ड्रिफ्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। जब ऑक्सीलेशन में एक माइनर सा भी डिफरेंस आने लग गया, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। ओके, this difference in oscillation period may be small but difference accumulate over many oscillation, hence computer clock drift from real time clock. For quartz crystal drift rate is 10 to 6 seconds और 1 second for every 11 to 6 days, ठीक है। तो कितना उसमें 1 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है, कितने दिन में, 11 डेज में। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, नॉर्मल अगर आप घड़ी की बात करते हो जो हमारे घरों में यूज होती है क्लॉक, उसमें भी ऑक्सीलेशन का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन टाइम वैल्यू ऑफ एनी टू क्लॉक इज कॉल्ड एज स्क्रू। बट जो दोनों टाइम वैल्यू के बीच में डिफरेंस आया, दैट इज कॉल्ड एज स्क्यू। डिफरेंस ड्रिफ्ट क्या हुआ, जब दो ऑक्सीलेशन के बीच में डिफरेंस आया, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। ओके, but the difference between time value for any two clock is called as skew. Okay, so most accurate physical clock include atomic oscillator. Those drift rate is about to one part in, sorry ये थोड़ा गलत हो गया, so most accurate physical clock include oscillator. Those drift rate is about 1 part. मतलब अगर 10 है तो उसका 0.1 पार्ट इतना वो एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। द एटॉमिक क्लॉक इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड रियल टाइम नोन एज इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम। यूटीसी इज बेस्ड ऑन एटॉमिक टाइम, ठीक है। जो मेन अपना स्टैंडर्ड है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम, और जो फिजिकल क्लॉक्स फॉलो करती हैं दैट इज कॉल्ड यूटीसी। यूटीसी किस पे बेस्ड है, एटॉमिक टाइप में, ठीक है। द क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन कैन बी अचीव बाय 2 वे। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सटर्नल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एंड इंटरनल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। सो ये मैंने आपको फिर से कवर करने के लिए इसलिए आपको जो ऐसी स्लाइड्स बनाई हुई हैं ताकि आप एग्जाम में भी प्रॉपर लिख पाओ। मैंने आपको प्रेजेंटेशन उस वे में नहीं दी है कि एक सिंगल लाइन करके दे दिया आपको, मैंने इसीलिए ये बड़े बड़े जो स्लाइड्स हैं बनाई हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो यू कैन राइट दिस, ओके। आफ्टर दैट द प्रॉब्लम इज द topic is issue in clock synchronization. A simple method of clock synchronization is that each node has to send a request message time question mark to the real time server. सिंपल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में मैंने आपको पहले भी बताया, वो क्या करेंगे, सर्वर से पूछेंगे टाइम, राइट। व्हाट इज द टाइम, सर्वर का क्या टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो टाइम सेट करेंगे। जो सर्वर से उनको रिप्लाई आएगा कि टाइम इज इक्वल टू टी, मतलब अगर सर्वर से उसको रिस्पॉन्स आता है कि मेरे पास इस टाइम 2 बज रहे हैं, तो यू कैन सेट योर टाइम टू 2 अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये क्या है, इशू हो जाएंगे।
सो इशू क्या होगा कि हो सकता है कि इंडिया का जो टाइम है वो वहां पे 2 बज रहे हैं, हो सकता है इंडिया में 5 बज रहे हो, तो टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है, राइट। आप कैसे एकदम से 3 घंटा पीछे चले जाएंगे, राइट। सो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। सो इस मेथड के क्या इश्यूज हैं, लाइक the ability of each node to read another node clock value. This can raise error due to delay in message communication between node. Delay can be computed by computing the time needed to prepare transit and receiver and empty message in the absence of transmission error and the system load. जब obviously जब सेंडर और रिसीवर में कोई कम्युनिकेशन चल रहा है और टाइम का इशू है, राइट, इसमें क्या होगा, रियल टाइम जो सर्वर होगा उसके अकॉर्डिंग ही नोड्स विल सेट देयर टाइम, राइट। सो इफ द प्रॉब्लम इज इन सेंडर एंड रिसीवर एंड देन द मैसेज कम्युनिकेशन में डिले होगा। ओके, हर एक कोई भी नोड है जब भी वो कम्युनिकेशन करने का ट्राई करेगी उसमें कुछ ना कुछ तो डिले होगा, क्योंकि उनको टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। कुछ भी अगर उसको एक ब्लैंक मैसेज भी भेजना है, कुछ भी करना है, तो भी उसको एक टाइम पीरियड चाहिए, राइट। बट अगर टाइम में इतना बड़ा डिफरेंस है तो वो एक इशू ही कंसिडर होगा, ठीक है। After that, the second point is time must never run backward since it may lead to the repetition of event or transaction created disorder in the system. मैंने आपको पहले ही बताया, हो सकता है वहाँ पे 2 बज रहे हैं और इंडिया में 5 बज रहे हैं, तो बैकवर्ड नहीं जा सकते हम लोग, राइट। बैकवर्ड जाके क्या होगा, रेपिटेशन ऑफ इवेंट होगा और ट्रांजेक्शन में जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएट होंगे, ठीक है। सो टाइम रनिंग बैकवर्ड इज जस्ट अ परसेप्शन, नॉट एक्चुअली इट गोज बैकवर्ड। हम ये सोच सकते हैं बट एक्चुअली वो बैकवर्ड जाता नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट, रीजन फॉर डिले इन सिंक्रोनाइजेशन। सो फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन लिंक फेलियर। फर्स्ट क्या होगा इश्यू, communication link failure. For example, when sending a request message, communication link is working properly and message reach to the server, but if at the time of receiving message communication link may fail due to some break and the client may not be able to get reply message after recovery, reply reach to client which contain false time value, ठीक है। सेंडर ने रिसीवर को एक सेंडर ने सर्वर को एक मैसेज भेजा, क्लाइंट हैज सेंड अ मैसेज टू server. Okay, so the message has been sent from client end. Okay, but the message reaches to the server, but the time of receiving the server gets fail. Then what happened? So client को क्या होगा, बाद में जब उसका लिंक जो है that will open और that will up, तब क्लाइंट को जाके रिप्लाई मैसेज मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जब भी उसको मिलेगा उसको लगेगा कि इस टाइम पे ये मुझे मैसेज मिला है, बट क्या होगा, एक फॉल्स टाइम वैल्यू उसको मिलेगी, क्योंकि वहां पे क्लाइंट को आइडिया नहीं है कि सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, राइट। उसको थोड़ी पता है, उसने तो अपना काम किया, उसने अपना मैसेज सेंड किया, राइट, एंड वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, बट सर्वर साइड पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, बट आफ्टर रिकवरी जब उसको रिप्लाई रीच टू द क्लाइंट, सो इट विल कंटेन फॉल्स टाइम वैल्यू, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉल्ट टॉलरेंस। ड्यूरिंग मैसेज पासिंग इफ एनी कंपोनेंट फेल्स इट मे कॉज एन इनएक्यूरेट रीडिंग ऑफ क्लॉक टाइम, so the system should be fault tolerant that can work in the faulty situation and minimize the clock drift value. अगर सिस्टम में कुछ डिफरेंस भी आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है, या इफ एनी कंपोनेंट फेल देन इट मे कॉज एन इनएक्यूरेट रीडिंग ऑफ द टाइम। अगर उसने सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो हो सकता है कि कोई इनएक्यूरेट रीडिंग दे दे, जैसे कि हमने फर्स्ट में पढ़ा कम्युनिकेशन लिंक फेलियर में, व्हेन द communication link may fail due to some break, then client may not be able to get reply message after the recovery message reply reaches to client which is contain false value. Same implies here that अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अगर हमारा कंपोनेंट फेल हो जाता है, सो द सिस्टम शुड बी फॉल्ट टॉलरेंट दैट कैन वर्क इन द फॉल्टी सिचुएशन एंड मिनिमाइज द क्लॉक ड्रिफ्ट वैल्यू। जो ऑक्सीलेशन में डिफरेंस आया है, अपना सिस्टम इतना ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट के लिए एबल होना चाहिए ताकि जो ड्रिफ्ट वैल्यू है उसको वो मिनिमाइज कर सके,
ठीक है. After that, third point is propagation time. Due to heavy traffic or congestion in the network, it may cause large propagation time for server to climb. It may cause the inaccurate reading of the clock value in the reply. जब तक वो ट्रैफिक में प्रोपोगेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है या बहुत ज़्यादा कंजेशन है, तो भी हो सकता है कि हमारा जो रीडिंग है दैट कैन बी inaccurate. Okay. Next point is non-receipt of acknowledgement. It may be possible that due to above reason, client will not get reply within a round trip time, and therefore it send multiple requests to the server for synchronization. It is a possibility, right? If due to communication link failure or due to some fault, it is possible the client will not get the reply, right? So he can send multiple requests to server for synchronization. उसको आइडिया ही नहीं है कि कहीं पे कम्युनिकेशन लिंक फेलियर हुआ है, कोई फॉल्ट आया है या कोई बहुत हैवी ट्रैफिक है, वो कंटिन्यू ही इज गोइंग टू सेंड द रिक्वेस्ट टू सर्वर फॉर सिंक्रोनाइजेशन. ओके. लास्ट पॉइंट इज द बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन लिंक. Due to low bandwidth of communication link, congestion may occur in the network. Therefore, request for time will not be able to reach the server or reply. The message will fail to reach the client, will affect the clock synchronization. Okay. So, bandwidth भी बहुत बड़ा reason है. Communication link का जो bandwidth है, it's a very important or very big reason for delay in synchronization. Okay. So, there are three types of clock synchronization. First one is physical clock, second one is logical clock, third one is mutual clock synchronization. We'll cover every topic in upcoming videos, but this is just an introduction about these clocks. So first one is physical clock. So every computer contain a clock, which is an electronic device that accounts the oscillation in the crystal at the particular frequency. Synchronization of these physical clock to some known high degree of accuracy is needed. This help to measure the time relative to each clock to determine order between events. I already discussed about the physical clocks. अभी हमने इस लेक्चर में physical clocks के बारे में ही पढ़ा है. So physical clocks क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी जो कि ऑक्सीलेशन को काउंट करती है. ठीक है. इसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए फिजिकल क्लॉक्स में कुछ इश्यूज भी आते हैं. सो इनको यूज करने के लिए हमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज करने पड़ते हैं. एल्गोरिदम्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस. ओके. सो सेकंड वन इज लॉजिकल क्लॉक. लॉजिकल क्लॉक क्या हुई? रेफर टू इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोटोकॉल ऑन द ऑल द मशीन विद इन योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. द मशीन आर एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट विद सम वर्चुअल टाइम स्पैन. A logical clock is a mechanism for capturing chronological and causal relationship in distributed system. Okay. So distributed system may have no physically synchronous global clock. So a logical clock allow global ordering an event from the different processes in the such time. So लॉजिकल क्लॉक में क्या होगा? एक कोई फिजिकल क्लॉक नहीं होगी, एक लॉजिकल क्लॉक होगी जिसके थ्रू जो भी हमारी जो नोड्स हैं सिस्टम में वो अपना टाइम जो है वो ग्लोबल क्लॉक के अकॉर्डिंग, मतलब जो अपना मेन टाइम होगा, जो अपना सर्वर का टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग वो सेट कर लेंगी. इनके लिए जो होते हैं वो एल्गोरिथम्स हैं. इनका जो डिटेल्ड explanation होगा विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस. ओके. आफ्टर दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि कोई भी स्टेट जो है, कोई भी नोड जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में ना जाए. मतलब फॉर एग्जाम्पल एक डिवाइस को यूज करना है प्रिंटर, बट प्रिंटर इज बिजी एट दैट टाइम, राइट? सो टू डिवाइसेस को यूज करना है एक प्रिंटर. सो फर्स्ट डिवाइस इज यूजिंग द प्रिंटर एंड सेकेंड डिवाइस इज इन वेट स्टेट. ठीक है. सो दोनों का क्या होना चाहिए? एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए कि दोनों ही एक ही टाइम पे प्रिंटर को एक्सेस करने का ट्राई ना करें. दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए कि ओके, प्रोसेस ए विल यूज द प्रिंटर फर्स्ट, आफ्टर दैट प्रोसेस विल बी यूज्ड. ओके. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द टुडे. और जो भी दिस फिजिकल क्लॉक, लॉजिकल क्लॉक, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्लॉक, एवरी क्लॉक हैज सम algorithms. We'll discuss in upcoming videos one by one. Firstly we'll discuss physical clock, after that the logical clock, algorithm for logical clock synchronization. After that we'll discuss mutual exclusion clock organization, synchronization, and the algorithm used for mutual clock synchronization. Okay. So you have any question, you can ask me in comment section. Okay. So till then, bye, take care.